أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى نبی طالب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی طالب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ جو بہتر سمجھتے ہیں کہ سبھی جو شرکاء ہیں وہ ہمارے اس میں ہمارا تعاون کریں. تو اس پروگرام کو آپ کے سامنے بے حد خوشی اور اعزاز کے ساتھ کھڑا ہوں جب ہم یہاں گورنمنٹ ڈگری کالج چاڈورہ میں کیلیگرافی پر 15 روزہ ورکشاپ کے افتتاح کے لیے جمع ہے جس کا اہتمام شیخ العالم کیلیگرافی اینڈ کلچرل آرگنائزیشن کتابت کہتے ہیں سر لکھی اردو کو اٹھاتے یہ اس کے ساتھ شکریہ. کالج کے اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جہاں تک اس پروگرام کا تعلق ہے شیخ العالم کو اس کیلیگرافی آرگنائزیشن کے ساتھ اس کا نام مقدس جوڑ دیا گیا. منسٹری آف کلچر سینٹرل جو ہماری سب جو یہاں میرے بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو سارے دوست یہاں پہ سب کی طرف سے پیار بڑا سلام. کیونکہ آج کا پروگرام جو ہے یہ کیلیگرافی کے متعلق ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ انتظامیہ سے ہے تو ہمارا ایکیڈمک اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیلیگرافی کے ایکیڈمکس کے جو نقطے ہیں وہ پتہ ہے. لیکن میں اس معاملے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ کے کالج میں آپ کے جو اساتذہ یہاں پہ ہیں ان اساتذہ میں آپ کے پاس کشمیری کے پروفیسر صاحب ہیں, بڑے ٹائم سے میں جانتا ہوں, ادب کے ساتھ ذوق شوق رکھتے ہیں. اسی طرح محسن صاحب آپ کے انگلش انگریزی کے استاد ہیں, بڑے قابل استاد ہیں, اور اس کے علاوہ بھی یہ مذہب کے اوپر بھی اچھے خاصی دسترس رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہندوستان جو ہے یہ آگے جا کے آپ کو کیلیگرافی کے جو ایکیڈمکس کے نقطے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آرٹ ایک ایموشن ہے اور ایموشن ہر کوئی انسان سمجھ لے. میں جو تیار کر کے آیا تھا وہ حامد صاحب نے تحقیق سب بول رہے ہیں. نئی بچے بولے والے بچے, اس لیے بولے والے میں بھی ایک زمانے میں ایسے ہی بیٹھا رہتا, یہ والی سیٹ پہ بیٹھا, بہت شائی تھا, زیادہ باتیں کسی سے نہیں کرتا. ابھی بھی ویسے ہی ہے, ایسے اسی قسم کا ہوں. اور جب بھی میں اپنے ایس پی کالج میں اسکول میں کبھی لیکچر اٹینڈ کرتا تھا تو میرے پاس جو نوٹ بک ہوتا تھا, نوٹ بک کے ساتھ ساتھ میں اس ٹیچر کا بھی پورٹریٹ بناتا تھا. اور ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ جو ہوتے تھے, میرے جو کلیگس تھے, مطلب فرینڈس, ان کے بھی پورٹریٹ بناتا تھا. نتیجہ یہ ہوا مجھے بہت پٹائی, حد سے زیادہ.
मैं इतना बेटा कि मैंने एक टाइम तो सोचा था मैं आर्ट नहीं करूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे हक में थे। मेरी मामा ने मुझे बहुत पीटा, जो कि मेरी मदर के दहेज के साथ ही आया। वो मेरे बड़े भाई की तरह थे। वो इसलिए पीटते थे, मैं इसलिए पीटता था कि मैं बाकी और कुछ नहीं करता था। मैं सिर्फ उस ज़माने में एक डक बैग का शूज़ आता था, ये 70s की बात मैं कर रहा हूँ। उस डक बैग के शूज़ के ऊपर ड्राइंग होती थी और एक कश्मीर का एक सीन बना हुआ, मैं उसकी कॉपी करता रहता था। अगर आप आज मेरा नाम गूगल पे देखेंगे, अभी करिए नाम, देखिए मेरा गूगल पे, माई पेंटिंग्स गोज फॉर लैक्स। I have left this Kashmir 1970. I am back after 55 years. क्योंकि हमने आर्ट को एकदम अलग रखा है। कैलीग्राफी आर्ट जैसे हमारे लिए कुछ नहीं, मानी नहीं रखता है। जरगर साहब और खासपुर से मैं यहाँ पे हमारे जो कैलीग्राफी है से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रोग्राम कर रही है, शेखुल आलम, उनके हुसैन साहब का, सबको, और मेरे प्यारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं और रिफत मैम जो है प्रिंसिपल साहिबा, सबको तहे दिल से सलाम करती हूँ। हमने जो ये वर्कशॉप यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, दरअसल ये इसलिए है कि बच्चे आजकल मुब्तला है ड्रग्स में, इसलिए हमने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने इसको सपोर्ट किया, तो बच्चे इसमें आए, कुछ सीखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत आर्टिस्ट आएंगे, इंटरनेशनल आर्टिस्ट आएंगे, वो बच्चों को सिखाएंगे। आपको लगता है हमारे बच्चों का फ्यूचर इसमें सेफ है अगर वो इस फील्ड में आएंगे? अगर बच्चे इस फील्ड में आए, पहले तो वो खराफा से दूर मतलब बच जाएंगे, तो इसमें पैसा भी है, वो बात नहीं है, ये फजूल है। कैलीग्राफी और आर्ट, इसमें पैसा बहुत है आजकल के ज़माने में, क्योंकि जो सीखते हैं आजकल मतलब सब करते हैं, लाइक करते हैं कैलीग्राफी। तो मैं यही दावत देता हूँ बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करें। खासकर इन 15 दिनों में क्या कुछ सीखने को बच्चों को यहाँ मिलेगा? इन 15 दिनों में उनको 2-4 खत हम सिखाएंगे और पेंटिंग भी सिखाएंगे। पेंटिंग ड्राइंग मतलब जो बच्चों को आता नहीं वो करते हैं, मतलब थोड़ा करते हैं, मगर यहाँ प्रॉपर उस्ताद आएंगे इन 15 दिनों में, डिफरेंट आर्टिस्ट आएंगे, तो वो बच्चों को सिखाएंगे। लास्ट में नई जनरेशन के लिए इस कैलीग्राफी के हवाले से क्या मैसेज होगा? नई जनरेशन के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सब बच्चों को इसके तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा विरसा है। ये हमारा कश्मीर में बड़े उस्ताद गुजरे हुए हैं, तो हम दावत देते हैं बच्चों को यहाँ आओ, कुछ सीखो। थैंक यू। ये है कि फ़नून लतीफ़ा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये हम अगर देखें अपने कुरान पाक की आयत के हिसाब से ये हमारे ऊपर फर्जियत का दर्जा रखती है। अब ये कुछ बेदार मग़ज़ लोग, जो लोग खवासे खमसा रखते हैं, वो इस अपनी मीरास को, अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं। फ़िलहाल ये शेखुल आलम कैलीग्राफी सेंटर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कल्चर सेंटर है उसकी इस तरह से जो काम हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि इस इलाके के दूर से भी अगर आने वाले तालिब इल्म उनके लिए एक बहुत गनीमत और खुश आइन मौका है, जो बहुत बेहतर है कि वो इससे पूरा फ़ायदा उठाएँ। अब रहा जहाँ तक कैलीग्राफी का ताल्लुक है, कुछ लोग दूसरे लोगों की चीज़ों को देख कर उसका नकल उतारने से, उसका चरबा बनाने को कैलीग्राफी कहते हैं। वो हकीकत नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब तक आप उसकी बुनियाद को, अब उसकी असलियत को, सब चीज़ों को नहीं जानेंगे, तब तक आपके लिए ये मेहनत जो है, ये कोशिश जो है वो रायगां है। बुनियादी चीज़ है कि इसकी अल्फ़ाबेट जो है वो आप सीखिए, चाहे वो अरबी की हो, चाहे वो फ़ारसी की हो, चाहे कश्मीरी की हो। मैं आपको एक अजीब इत्तेफ़ाक़ यहाँ बता दूँ कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में अरबी रस्मुल ख़त के अलावा 6 या 7 ज़बानें ऐसी हैं जो ख़त नस्तालिक में लिखी जाती है। ये ऊपर प्रोग्राम हो रहा था, किसी ने ये बात नहीं कही। ख़त नस्तालिक कहते हैं इसी को, जिसको हम उर्दू कहते हैं, फ़ारसी कहते हैं, या यहाँ की मकामी 2-3 ज़बानें, पहाड़ी है, गोजरी है, शीना है, ये भी इसी रस्म ख़त में लिखी जाती है। तो ये सारे के सारे ख़त जो है ये है, इसका नाम है ख़त नस्तालिक। तो जब तक हम ये सीखेंगे नहीं तो हमारी हाथ जो है, हमारे तहरीरों में खूबसूरती नहीं आएगी। उठाते
बता देते हैं ये इसके साथ नंबर है समझते हैं, बेहतर समझते हैं कि सभी जो शुरका है वो हमारी इसमें हमारा ताउन करें। तो इस प्रोग्राम को नई दिल्ली कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन का नाम है बारिश।